नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक बड़ी उद्योग पॉलिसी का आज खुलासा जो है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने किया। इसमें इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी और यूथ को रोजगार भी मिलेगा। ये 17 साल के लिए पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी में 8,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव 17 सालों में वितरित किया जाएगा। उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद इस बात की बढ़ गई है कि बाहर से इंसेंटिव भी आएगा और लोगों को, यूथ को, जो एक टेंटेटिव फिगर है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या यह पॉलिसी सही मायनों में इंप्लीमेंट हो पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी, तब भी एक बड़ी पॉलिसी की घोषणा की गई थी। उस पॉलिसी के तहत स्टेट से भी इंसेंटिव मिलता था, सेंटर से भी इंसेंटिव मिलता था और तब इन्वेस्टमेंट भी आई। जैसे ही इंसेंटिव खत्म हुआ, लोगों ने यहां पे यूनिट लगाए, मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय असेंबलिंग की और असेंबलिंग करने के बाद जैसे इंसेंटिव खत्म हुए वो रवाना हो गए। लेकिन आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बड़े ही विश्वास के साथ ये कहा है कि इस पॉलिसी का जरूर लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी से एक तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग पनपेगा, दूसरा रोजगार के अवसर भी आपको मिलेगा। Place before you the key highlights of the policy. For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with the total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. To make this scheme unique and historic for Jammu and Kashmir, let me tell you in brief about features of these 4 incentives. First is the capital investment incentive at the rate of 30% in Zone A and 50% in Zone B. Zone B means backward areas. On investment made in plant and machinery, in manufacturing or construction of building and other durable physical assets in service sector will be made available. Units with an investment up to Rs 50 crore will be eligible to avail this incentive. Maximum limit of incentive is Rs 5 crore and Rs 7.5 crore in Zone A and Zone B respectively. Second is capital interest subvention at the annual rate of 6% for maximum 7 years on loan amount up to rupees 500 crores for investment in plant and machinery in manufacturing or construction of building and all other durable physical assets in service sector also. Third is GST limited incentive. Financial incentive based on gross GST. This will incentive output up to 30% of the eligible value of actual investment made in plant and machinery, in manufacturing or construction in building and all other durable physical assets in service sector for 10 years. However, amount of incentive in a financial year will not exceed 1/10 of the total eligible amount of incentive. Fourth is working capital interest incentive. All existing units at the annual rate of 5% for maximum 5 years, पीछे मैंने आपको बताया था
कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो भी 2023 में हकीकत बनेगी और सभागार में बैठे हुए लोग 2023 दिसंबर में मेट्रो में सफर करके जम्मू की यात्रा कर सकेंगे। इस काम को भी हम अंजाम दे रहे हैं। दर्शकों, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी एमके त्रिवेदी ने भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यूथ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूथ को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नए सिरे से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको दर्शकों बताते चले कि अगर सही मायनों में इस पॉलिसी को सही एग्जीक्यूट करना है, ये इंप्लीमेंट करना है, तो नीयत बदलनी पड़ेगी और साथ ही साथ अफसरों को अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। जिस तरीके के गुजरात में कोई इन्वेस्टर जाता है, जो सुविधाएं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर मिलती हैं, वैसी ही सुविधाएं यहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन एमके त्रिवेदी जो आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था कि इस पॉलिसी से यूथ को भी फायदा होगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आइए देखते क्या कहना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट में अप्रूव की है, उसके डिटेल्स आपके सामने रखे। इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोग, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लोगों को बहुत समय से जिज्ञासा थी कि किस तरीके से ये नई पॉलिसी आएगी और वो लोग इसका लाभ उठाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसमें जैसे बताया गया कि नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंसेंटिव्स की बात की गई है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए, बट साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि कुछ हिस्सों में, कुछ चीजों में उनको संशय है। जब पूरी तरह से पॉलिसी ड्राफ्ट होकर के बाहर आएगी तभी वो विस्तार से कुछ कह सकते हैं। अलबत्ता उनका यह जरूर कहना है कि वेलकम स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, अमित शाह का आभार व्यक्त किया है और मनोज कुमार सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं उनका भी आभार व्यक्त उद्यमियों ने किया है। इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं और एलजी साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। जो पैकेज आया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आएंगी, आने वाले टाइम में बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। हमारा तो यही वो है कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है और एलजी साहब का भी बहुत धन्यवाद कर। आज जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया है, हमारे हिसाब से वो एक वेलकम स्टेप है। उससे हमारी स्टेट में जो बड़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे इंडस्ट्रियल पैकेज की, तो आज वो एक सपना साकार हो गया है। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद करता हूँ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो 28,500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी स्टेट में, जो हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। उद्यमियों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब सुविधाएं भी बेहतर दी जानी चाहिए। खाली पॉलिसी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, आपको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना होगा। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी किसी को उद्योग लगाने के लिए पावर कनेक्शन चाहिए तो उसको लंबी कतार में लगना पड़ता है, यानी लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस जाना पड़ता है। पोल्यूशन की परमिशन को लेकर के भी उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उद्यमियों का कहना है कि अगर आप सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करेंगे, तभी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और सन ऑफ द सॉइल का पूरा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। क्लियर होगा। हमने भी आपके माध्यम से और पेपर्स के माध्यम से पढ़ा है कि ये एक पैकेज आया है। अभी प्रेस रिलीज एलजी साहब की आई है, उसको पढ़ने से लगता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री को देने के बारे में सोचा हुआ था और जो दिया है हमारी उम्मीद के मुताबिक ही है। पर इसमें कुछ बातें अभी क्लियर नहीं है, जो हमें डाउटफुल है कि ये जो पैकेज है ये लागू होगा 1 अप्रैल से। जो यूनिट पीछे 2.5-3 साल में लगे हैं, जब ये पिछले पैकेज जो चल रहा था उसको और इसमें बहुत फ़र्क अंतर है। उन यूनिट्स का क्या होगा, हो सकता है डिटेल में जब पैकेज आएगा तो उसमें वो भी कवर अप किए होंगे, पर अभी संशय ही है इस पे, हमें इस पैकेज पे। लगे साहब, जो पहले से जो यूनिट जो एस्टेब्लिश हैं उनको इंसेंटिव दिए गए हैं,
क्या उसमें ये बात रखी गई है कि वो इंसेंटिव जारी रखे जाएंगे? इसमें भी लिखा है एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए, लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है, बट क्या देंगे एग्जिस्टिंग यूनिट को ये पता नहीं है अभी तक। ये डिटेल ब्रोचर में आएगा, पर इससे हमें ये लगता है कि उद्योग आएंगे, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा वेलकम पैकेज है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि हम इसको कहें कि ये क्रिटिसाइज करें, बट जब तक डिटेल पैकेज नहीं आता इसमें संशय बरकरार रहेंगे इसमें। दर्शकों, जब उपराज्यपाल से ये पूछा गया कि पिछली पॉलिसी भी बड़ी इफेक्टिव थी, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की और उसके बाद वो चलते भी बने, यानी जब इंसेंटिव खत्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने यूनिट बंद कर दिए, तो उन्होंने उनके साथ साथ सीएस ने भी ये तस्दीक की कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, किसी को सिर्फ प्लॉट लेने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं दी जाएगी, पूरी सख्ती बरती जाएगी। विस्तार से बताया था कि 2002 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2020 में हम लोग खड़े हैं। मोटे तौर पर 18 साल हो गया, 1100 कुछ करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था और ये 17 साल में 28,400 करोड़ इंसेंटिव मिल रहा है। इन सारी खामियों को विचार करते हुए एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये नहीं केवल इंसेंटिव के लिए आप आ जाएंगे और जमीन अलाट करा लेंगे और बिल्डिंग बना लेंगे, इंसेंटिव लेके चले जाएंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो जमीन जो आपको अलाट की गई है वो कैंसिल की जाएगी। तो केवल इंडस्ट्री लगे, इसी निमित्त ये पॉलिसी बनी। दर्शकों, उपराज्यपाल ने कुछ ऐसा भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना की घोषणा जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर यूटी नंबर 1 पर आया है। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली की परियोजनाओं को लेकर के हर संभव कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट खोले जाए और साथ ही साथ 2023 में आप सब लोग मेट्रो में घूम पाएंगे। ये घोषणा खुद उन्होंने की। कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटम जंप जम्मू कश्मीर की यूटी कर रही है। आपको ध्यान होगा 26 दिसंबर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत सेहत की योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए किया। हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इलाज के लिए मिले, इसका प्रबंध जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। आपने देखा 3 जनवरी को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी यहां थे। मोटे तौर पर 3450 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाने का काम हम आने वाले 4 वर्षों में पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपके बीच कि कई गैप्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासतौर से पावर सेक्टर के। मैं खुद महसूस कर रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं जम्मू में। इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म मीजर्स क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म मीजर्स क्या हो सकते हैं। मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस काम पर हम जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जल्दी ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठा करके इस काम को समय सीमा के भीतर में हम पूरा करेंगे। अगर सड़क की मैं बात करता हूं तो मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि देश के सभी राज्यों की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पिछले वर्षों में जो अलॉटमेंट रहा है, जो फंड एलोकेशन रहा है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि सड़क के मामले में हुई है। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 250 आबादी के जो भी गांव हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन सबको जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी और आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक भी गांव यहां का नहीं होगा जो सड़क से नहीं जुड़ जाएगा। एक और योजना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क, पॉटहोल फ्री रोड्स। जम्मू और श्रीनगर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं या कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, टूरिस्ट प्लेस हैं या कई धार्मिक स्थान हैं, जहां तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। और ये काम भी हम जम्मू का काम मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक हम शुरू कर लेंगे। कश्मीर डिवीजन में
मुझे लगता है कि मई में काम शुरू करेंगे और 2 महीने में उस काम को भी खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी मेजर रोड्स हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार 2500 किलोमीटर सड़कों के विशेष मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर को धन देने जा रही है। तो मैं गर्व से बात कर सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि सड़क विभाग ने जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में काम को गति दी है और जो प्लान बनाया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना हम पूरा कर सकेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो भी 2023 में हकीकत बनेगी और सभागार में बैठे हुए लोग 2023 दिसंबर में मेट्रो में सफर करके जम्मू की यात्रा कर सकेंगे। इस काम को भी हम अंजाम दे रहे हैं। दर्शकों, आज जब उपराज्यपाल ने यह घोषणा की होगी कि इतने 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं तो अच्छा लगा था, लेकिन जब हमने उस थन्ना मंडी के एरिया में उस डेली वेजर को पोल पे लटके देखा और पोल पे ही उसकी डेथ हो गई, तो हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कहीं कुछ गलती हो रही है। डेली वेजर 61,000 हो 60,000 हो, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि उसको रेगुलराइज की जाए। इस लाश को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या डेली वेजर्स के मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है। इस डेली वेजर को ऊपर वायर ठीक करने के लिए चढ़ाया जाता है और पीछे से पावर ऑन कर दी जाती है और वो वहीं पे लटक के करंट लगने से मर जाता है। उसकी बिलखती माँ को देखिए, उसकी बीवी को देखिए, उसके 6 बच्चे भी हैं। सरकार को संज्ञान लेना होगा और जब तक उसकी डेड बॉडी को उतारा नहीं गया था, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। सिर्फ बात थी ये डेली वेजर था। ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी पीडीडी के कई डेली वेजर इसी तरह से मारे गए। यह मंजर खौफजदा नहीं है? आपको भय नहीं लगता है कि किस तरीके से एक परिवार, पूरा परिवार, इसके 6 बच्चे बताए जाते हैं, अब किस पर निर्भर होंगे? डेली वेजर्स के लिए ना तो SRO 43 होता है, ना कोई पेंशन का प्रोविजन होता है, ना ही इनके किसी किथन किन्स को लगाया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, लापरवाही के कारण इस डेली वेजर के परिवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो मौके पर खुद भी देखा, जो विजुअल देखा है आपने, वो सब कुछ आपके सामने था। वो हमारा एक गरीब लड़का जिसके घर में कोई सहायता नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, एक ही यही था और इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगाया हुआ था और जो परमानेंट मुलाजिम थे वो इसके साथ थे। इसकी ड्यूटी ऑलरेडी बंगाई में थी, 3 दिन ये पहले बंगाई में था। अब इसकी बीवी जो थी वो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल राजौरी में है, वो बीपी की पेशेंट है। इसको 6 बच्ची हैं और ये घर में था। आज ये इसकी डेथ यहाँ हो चुकी है। हमें अभी इतला मिली है कि उसको शॉर्ट हो गई है, वो परथपुरी पुल पे शॉर्ट हो गई है। वहाँ कहाँ गया? वो 2 जो परमानेंट मुलाजिम थे उन्होंने इसको चढ़ाया और पीछे से उनको बिजली वालों ने बिजली छोड़ी और उसको यहाँ इसको मार दिया गया है। लिहाजा इस वक्त तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं है, एक SHO साहब के बना यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं है। हम अपील करते हैं कि हमारे पास यहाँ DC साहब होने चाहिए, SP साहब होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और थाना मंडी की तहसील के एक तहसीलदार साहब भी यहाँ अभी नहीं आए हैं। बाकी कौन यहाँ हमारे पास आएगा? इन गरीबों की मौके पर पहुँच गया। ये वाक़या जो देखने में आया या मैंने जो पर्सनली इसमें जो मालूम किया है कि ये बिजली वालों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत होगी। उधर से इसको पोल पर चढ़ा रहे हैं, उधर से बिजली छोड़ रहे हैं। तो ये नौजवान था, 6 बच्चियाँ हैं इसकी छोटी छोटी। इसकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बाप भी बीमार है, कोई सहारा नहीं है। भी ये नीड बेस, कभी तनख्वाह मिलती है कभी नहीं मिलती। तो अब मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से, ख़ासकर बिजली डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब हादसा हो गया, बंदे की जान चली गई और अब जिसकी भी लापरवाही हुई है नुकसान हो गया, तो इसमें कम से कम इसका कोई घर का फ़र्द जो है इसकी जगह एडजस्ट किया जाए, तो इसको माकूल जो है मुआवजा दिया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ये लापरवाही की वजह से इसकी मौत हुई है उसकी वास्ता कार्रवाई हो और केस रजिस्टर हो। समझता हूँ जो मैंने मौके पर ये देखा है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, चाहे वो ग्रिल स्टेशन हो या जो साथ में थे जो मुलाजिम
उनकी बात हो, क्योंकि इसको ऊपर चढ़ाया गया और बिजली की तरफ जो है वो नहीं देखा गया, बिजली चल रही है नहीं चल रही है तो बंदे की जान चली गई। ये तो मैं समझता हूँ एक किस्म का कत्ल है। तो इसकी जो है बड़ी एक तो जांच की भी ज़रूरत है और इसको माकूल जो है वो मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गरीब है। मेरी डीसी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट के एक्सीएन हैं या कोई और है वो उनको भेज रहे हैं। अब टाइम काफ़ी हो गया है तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लोग दरदार हो रहे हैं क्योंकि इसका जो है कफन दफन भी करना है। ये बंगाई का रहने वाला है, दूर दराज इलाका है, लोगों को बड़ी परेशानी है। उसके जितने रिश्तेदार हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उधर से ट्रैफिक भी बंद है। मुसाफिर जो रजौरी से थन्ना मंडी है, थन्ना मंडी से रजौरी जो आने जाने वाले हैं उनको भी दरदरी हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसमें इमीडिएट जो है एक्शन की ज़रूरत है और मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली वो यहाँ पहुँचें और इनको जो है पैसिफाई करें। दर्शकों, उधमपुर में 150 से ज्यादा कौवे मारे गए। बीमारी कौन सी है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको बताते चले कि ये संकट की घड़ी है। 150 कौवे पहले से ही लुप्त होते जा रहे हैं। जब पितृपक्ष होता है तो तब कौवों को याद किया जाता है। अपने पितरों को मनाने के लिए, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी आत्माओं को खुश करने के लिए कौवों को याद किया जाता है। लेकिन आज एक साथ उधमपुर में 150 कौवों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की बात करेंगे तो प्रवेश द्वार लखनपुर, वहां पर पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले ट्रक की चेकिंग की जा रही है और इसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं कि हर एक जिले में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, कमेटियां गठित की जाएंगी और हर आने वाली गाड़ी में बर्ड्स की चेकिंग होगी। तरफ आई है ना कि नॉमिनेट करो नोडल अफसर हर अपनी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि नेबरिंग स्टेट हमारी हिमाचल में बर्ड फ्लू जो है रिपोर्ट हुआ है, उसको देखते हुए हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ गई हैं, एडवाइजरी इशू हो गई हैं। एडवाइजरी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडवाइजरी आई है उसमें नोडल अफसर नॉमिनेट करना है और साथ में रैपिड रिस्पांस टीम बनानी है। रैपिड रिस्पांस टीम मतलब कहीं भी कोई भी किसी टाइप की कोई दिक्कत आती है, कोई मॉर्टलिटी होती है, कोई जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, बायोसिक्योरिटी कोई मेजर अपनाना है, उस चीज़ के लिए रैपिड रिस्पांस टीम हर टाइम रेडी रहेगी। और हमारा सर जो बाहरी राज्य से जो बर्ड्स आ रहे हैं उनको लेकर, हाँ, उनके लिए भी, उनके हमारे लिए भी एडवाइजरी में है कि हम तो ऑलरेडी पहले भी अपना जो चेकिंग हमारा चलता ही था। ये जो बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ है हमारा नेबरिंग स्टेट में, उसको देखते हुए डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि हमने हर एक व्हीकल को प्रॉपर्ली चेक करना है। घराना वेटलैंड में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आइए देखते हैं। कर रेडी छाड़ दो अपना, ले ले कोई गल नहीं जिला। पक्षी जो है मेनली साइबेरियन क्रेन जिसे हम भारत कहते हैं, ये आते हैं सेंट्रल एशिया से हमारे पास यहाँ। इस बार भी आए हुए हैं, काफ़ी मकदार में आए हुए हैं।
लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, जैसे आपने सुना होगा कि नेबरिंग जो स्टेट्स है तो वहाँ पे ये H5N1 वायरस जो है एवियन फ्लू वो फैला हुआ है, तो उसके कारण थोड़ी सी सतर्कता जो है, थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा सतर्कता हमें बरती है यहाँ पे। तो डेली बेसिस की हम उसकी जो विजिलेंस है वो कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे चूना वगैरह भी रोज़ फेंकते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर के ऊपर। गांव वालों के साथ, पंचायत के साथ भी हम ताउन में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उनको थोड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो गाँव वालों के जो मवेशी हैं यहाँ नहीं आते, इंडोर से ये लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको बता रहे हैं कि वेटलैंड एरिया के पास मवेशियों को ना लाया जाए, और कोई अगर आपको पक्षी ऐसा दिखता है तो हमें रिपोर्ट की जाए। हम लोग भी 24 घंटे जो है विजिलेंस यहाँ सैम्पलिंग के लिए वेटनरी टीम जो है वो डेली बेसिस पे आ रही है, वो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लेबॉर्ट्रीज में। नहीं सर, अभी टिल नाउ ऐसा कुछ देखा नहीं गया। यहाँ पे कोई पक्षी में कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, किसी में कोई लक्षण दिखे नहीं है, ना ही कोई पक्षी जो है हमें मृत मिला है। आ रहे हैं पहले से कम है, लेकिन फिर भी हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, हम पीछे ही उनको ये गेट से पीछे ही उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरफ पास में नहीं आना चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।